start the class. So once again, Jai Hind and good morning, everyone. As you know, we are discussing the chapter biomolecules. Biomolecules. In biomolecules, what are the topics which are over? Let's see. So we completed the definition of biomolecule. Then after next, that is कार्बोहाइड्रेट. बायोमोलिक्यूल में जो पढ़ना था उसमें कार्बोहाइड्रेट ओल्ड डिफिनीशन and why old definition is not so successful. Then after new definition, then after classification of carbohydrate on the basis of hydrolysis, then after classification of carbohydrate on the basis of their reducing nature, and then after classification of monosaccharide. These topics were over day before yesterday. Yesterday we had completed the preparation of glucose by two methods. Then physical properties of glucose and chemical properties of glucose, means chemical reactions of glucose. Now we need to discuss the structure of glucose. अब हमको glucose का structure discuss करना है. So I'm going to start the discussion of structure of glucose. ठीक है. In structure of glucose, so many topics are. So first of all, structure of glucose. So anyone please, voice and screen both are clear? Please tell me. This time Yes, sir, I have. clear. Okay. So we are going to discuss the structure of glucose. अब हम glucose का structure discuss करने जा रहे हैं. So structure of glucose. In structure of glucose, first of all, remember this: glucose is having two structure. ग्लूकोज दो स्ट्रक्चर शो करता है. फर्स्ट वन इज फिशर स्ट्रक्चर, FISCHER, फिशर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. And second is Haworth structure, and this is not only for glucose, this is for all the monosaccharides. Sorry, not monosaccharide, carbohydrates. जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको बताया गया है कि दे आर शोइंग द टू स्ट्रक्चर, फिशर स्ट्रक्चर and Haworth structure. So glucose is having two structure, Fisher and Haworth, and fructose is also having two structure, Fisher structure and Haworth structure. So what is there in Fisher structure and Haworth structure? Formula of glucose is that you C6 H12O6. Now Fisher structure and Haworth structure में क्या है? So Fisher structure is open chain structure of glucose. ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को फिशर स्ट्रक्चर कहते हैं. फिशर स्ट्रक्चर इज ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड हैवर्थ स्ट्रक्चर इज साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का दो स्ट्रक्चर आपको बतलाया जाएगा. एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा, सो दैट इज कॉल्ड फिशर स्ट्रक्चर, एंड एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हैवर्थ स्ट्रक्चर. So first of all, make it clear. Glucose is having two structures. Scientists have given the two structure of glucose, that is open chain structure and cyclic structure. Now open chain कब होता है और cyclic कब होता है? So whenever glucose is present in any liquid, जब ग्लूकोज किसी लिक्विड में होता है, then its structure is means in our body. हमारे बॉडी में ग्लूकोज जहाँ कहीं भी होगा वो ब्लड के साथ होगा, लिक्विड में होगा. So in our body glucose is in cyclic form. लेकिन जो ग्लूकोज, जैसे आप ड्राई ग्लूकोज लेते हैं, दैट इज सॉलिड ग्लूकोज, सो उसका स्ट्रक्चर देखा गया ओपन चेन. सॉलिड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन होता है, लेकिन जैसे ही ये किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, इट अंडरगो साइक्लाइजेशन. तो ये साइक्लाइजेशन करता है एंड कन्वर्ट इनटू साइक्लिक स्ट्रक्चर.
इन कोलाइडल सोल्यूशन, इन एक्वस सोल्यूशन, जैसे ब्लड है कोलाइडल सोल्यूशन, तो उसमें भी साइक्लिक फॉर्म में होता है, और वाटर में डिजोल्व करता है उसमें भी साइक्लिक फॉर्म में होता है। लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में होता है तो देखा गया था कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ओपन चेन होता है। सो ग्लूकोज इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दो होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज हियर, ओपन चेन स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देख चुके हैं, ये डी और प्लस ये साइन छोड़ दीजिए, अभी केवल बात हो रही है, ठीक है, ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर की। सो द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज दिस, in which 6 carbons are arranged in straight chain। 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में अरेंज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्बन इज CHO ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन कंटेन H and OH, बाकी कार्बन जो होते हैं वो H और OH कंटेन करते हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीसर स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज का फीसर स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये फ्रक्टोज का फीसर स्ट्रक्चर है, ओपन चेन स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर या फीसर स्ट्रक्चर अगर आएगा तो आप कैसे बनेंगे? सिंपल, 6 कार्बन को स्ट्रेट चेन में अरेंज कर लेना है। फर्स्ट कार्बन CHO हो जाएगा, रेस्ट कार्बन 2 3 4 5 6, rest carbon will have the H and OH to complete their valency. So CHOH, another CHOH, another CHOH, another CHOH, and last one CH2OH. So this is the open chain structure of glucose। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। नाउ in open chain structure the glucose is categorized in two form। ओपन चेन स्ट्रक्चर में, इस ओपन चेन फॉर्मेट में ग्लूकोज को दो फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। ग्लूकोज इज कैटेगराइज्ड इन टू फॉर्म, वन इज कैपिटल D फॉर्म, another is capital L form। remember it is capital D form and this is capital L form, ठीक है। D फॉर्म, कैपिटल D, नॉट D, केवल D फॉर्म नहीं कहेंगे, कैपिटल D फॉर्म एंड कैपिटल L फॉर्म। कैपिटल D और L होता है, which you have seen in coordination compound and in haloalkane haloarene also, that is optical activity। So small d and small l are showing optical activity, कि it is dextrorotatory or levorotatory। small d or plus means you know dextrorotatory, and small l or minus means you know levorotatory। तो small l या small d अगर वहां पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो नहीं है। दिस मीन्स कैपिटल डी कैपिटल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल डजंट मीन्स द डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी। कैपिटल डी कैपिटल एल सिंबल जो है वो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी को नहीं बतला रहा है। रिमेंबर दिस, कैपिटल डी कैपिटल एल इज नॉट शोइंग इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल are something else, and small d l showing their optical activity। so small d small l अलग सिंबल है जिसका मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी होता है। कैपिटल डी कैपिटल अलग है, कैपिटल डी कैपिटल एल अलग है। सो व्हाट इज कैपिटल डी कैपिटल एल? ये क्या चीज है? सो कैपिटल डी कैपिटल कम्स फ्रॉम, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। ये फॉर्म कहाँ से लिया गया है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड के ऑब्जर्वेशन के बाद ये फॉर्म आया। ओपन चेन में ये दो फॉर्मेट पाए जाते हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल। कैपिटल डी कैपिटल एल दैट इज ग्लिसरल CHO CHOH CH2OH, ठीक है। इससे ये पता चला, इसको बेस लिया गया है। व्हाट इज द बेस फॉर कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म? नोटेशन सी, इट इज रिटन कैपिटल डी कैपिटल एल नोटेशन, ठीक है। ये वो चीज नहीं है जो आप कह रहे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटल डी पॉजिटिव, तो
कैपिटल डी फॉर्म का मतलब डिटन है, और प्लस माइनस का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लीवो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल डी कैपिटल एल? ये चीज यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसको आपको अपने से लिखना होगा, ठीक है। रिमेंबर, ये बेस लिया गया है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड में ऐसा होता है, इसलिए इसी के बेसिस पे बाकी को लिया गया है। सो द पोजीशन ऑफ और साइड ऑफ, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द साइड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप की साइड है, द साइड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट लोवेस्ट एसिमेट्रिक carbon Fischer structure, the side of hydroxyl group at lowest asymmetric carbon in Fischer structure. Fischer structure में lowest asymmetric carbon, remember this word, lowest asymmetric carbon पर OH की साइड है. If OH will be right, then that will be capital D, and if OH will be left side, then that will be capital L form, and it is not प्योर कि D का मतलब डेक्स्ट्रो ही हुआ, D का मतलब लीवो भी हो सकता है। सो D फॉर्म अलग है, L फॉर्म अलग है, रिमेंबर दिस। और स्मॉल d स्मॉल l वो अलग चीज है। सो आप क्या कहेंगे DL नोटेशन में, आप क्या कहेंगे, the side of or the position of hydroxyl group at lowest asymmetric carbon is responsible, lowest asymmetric carbon सेकेंड कार्बन नीचे से होता है, लास्ट से सेकेंड, फंक्शनल ग्रुप के साइड से सेकेंड नहीं, लास्ट से सेकेंड। देखिए डॉटेड लाइन बनाया गया है, ये वाला कार्बन लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, क्योंकि उसके नीचे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो वो एसिमेट्रिक नहीं है। एसिमेट्रिक कार्बन फाइंड करना आपको बता दिया गया है, ठीक है। सो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH की साइड डिसाइड करती है कैपिटल D कैपिटल L नोटेशन। सो द position of lowest, the position of hydroxyl group at lowest asymmetric carbon in Fischer structure और ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन पे ही पता चलेगा, साइक्लिक पे नहीं। इन ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, दैट इज मोनोसैकेराइड, दैट इज ग्लूकोज और फ्रक्टोज, दो की बात हो रही है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैपिटल D कैपिटल L नोटेशन। If hydroxyl group is present towards right side at lowest asymmetric carbon of glucose, then that is called capital D form of glucose. And if OH is present left side, OH is present left side at lowest asymmetric carbon, अगर यही OH इस साइड हो और H इस साइड हो, then that is called capital L form of glucose fructose, उसका कैपिटल L फॉर्म करते हैं। सो रिमेंबर, कैपिटल D फॉर्म कैपिटल L फॉर्म विल बी डिसाइडेड बाय, ठीक है, द पोजीशन ऑफ लोवेस्ट asymmetric carbon in open chain structure only, not in cyclic structure। ओपन चेन में आपको यही जानना था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर या फिशर स्ट्रक्चर है क्या, और इसमें कैपिटल D कैपिटल L फॉर्म कैसे होता है। सो इफ आई विल ड्रॉ द कैपिटल D कैपिटल L फॉर्म, अगर मैं कैपिटल D कैपिटल L फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ कर, तो दिस इज CHO, it has CHOH, or maybe if I will draw both the side, then CHOH, then CH। बाकी किसी कार्बन से हमको कोई मतलब नहीं है कि OH लेफ्ट साइड है राइट साइड है। लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन से केवल मतलब है कि OH लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है। सो C, this is the fifth carbon,
H एंड OH। अगर OH लेफ्ट साइड लिख दी CH एंड OH। सो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन यानी सेकंड लास्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड है। सो दिस इज कैपिटल L फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का कैपिटल L फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट, अगर यही कैपिटल R कैपिटल D फॉर्म सर बनाना है। यस सर यस, हेलो। सिक्स कार्बन को हम लोग लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि Sixth वो भी carbon तो। is not asymmetric carbon. It is lowest carbon but not asymmetric. It is having two hydrogen same species. और asymmetric carbon आपको क्या कहा गया था? Asymmetric carbon is that carbon which is having four different species. जिसके पास चार अलग अलग स्पीसीज होनी चाहिए। तो सिक्स्थ कार्बन लोवेस्ट कार्बन तो है, बट एसिमेट्रिक वर्ड नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि लोवेस्ट एसिमेट्रिक आपको फाइंड करना है। ए लोवेस्ट कार्बन नहीं फाइंड करना है। लास्ट कार्बन सिक्स कार्बन इज लोवेस्ट कार्बन, but it is not asymmetric. So above that, that will be asymmetric also. So that will be called the lowest asymmetric. Is that clear? यस सर। Okay. रिमेंबर द इंफॉर्मेशन। एसिमेट्रिक मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एसिमेट्रिक विच आर हैविंग फोर डिफरेंट स्पीसीज। लोवेस्ट एसिमेट्रिक जो भी आएगा वही कार्बन, मतलब सबसे नीचे वाला एसिमेट्रिक कार्बन। सबसे नीचे वाला नहीं, सबसे नीचे वाला एसिमेट्रिक, वो एसिमेट्रिक क्वालिटी वाला हो और सबसे नीचे हो, यानी उसकी नंबरिंग सबसे लास्ट में हो। देन दिस वन इज CHOH। बाकी में किसी भी साइड HOH लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लोवेस्ट वाले से कहा गया है कि प्रॉब्लम होती है, सो लोवेस्ट वाले को D और L फॉर्म बतलाया गया है। ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज COH, मे बी H, नेक्स्ट वन OH and H, and last CH2OH. So in this, lowest asymmetric carbon means second last carbon. In this OH is right side, so this is capital D form. तो अगर capital D capital L form of glucose बनाने को कहेगा तो आपको ये बनाना पड़ेगा। And capital D capital L notation is depend on the position of hydroxyl group। किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पोजीशन पे। The position of which hydroxyl group? The position of hydroxyl group present at lowest asymmetric carbon। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन में सबसे मतलब प्रेजेंट होगा, बस उसी पे डिपेंड करेगा, बाकी किसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा। रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन। सो दिस इज अ कैपिटल L फॉर्म। फीसर स्ट्रक्चर में हमको यही पढ़ना था, कैपिटल D कैपिटल L फॉर्म। नाउ साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। फीसर स्ट्रक्चर बस यही दो इंफॉर्मेशन पढ़ना था। और ये नोटेशन का बेस क्या है? सबसे पहले ये नोटेशन किसमें आइडेंटिफाई किया गया? तो सबसे पहले ये नोटेशन आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है, ग्लिसरल डिहाइड में। ग्लिसरल डिहाइड में। नाउ सी, ये भी याद रखिएगा कि अब नोटेशन आपको तीन चीजों के साथ मिलेगा। पहले बतलाएगा कि D है कि L है, उसके बाद बतलाएगा प्लस प्लस, एंड इसके बाद ग्लूकोज ग्लूकोज। सो इसका मतलब है कि ये कैपिटल D वाला ग्लूकोज है, ये कैपिटल L वाला ग्लूकोज है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है। ये दोनों प्लस मैंने लिख दिया है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि D का अच्छा चलिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला ग्लूकोज है और ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला ग्लूकोज है। देखिए नोटेशन L है लेकिन डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर L नोटेशन है तो हमेशा लिवो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। L में भी दोनों आ सकता है और D में भी दोनों आ सकता है, प्लस माइनस। सो वो अलग इंफॉर्मेशन है, ऑप्टिकल एक्टिविटी है, और ये अलग इंफॉर्मेशन है, वो उसका साइड बतला रहा है।
नाउ नेक्स्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। सो सी, जब ग्लूकोज, ठीक है, जब ग्लूकोज सॉलिड फॉर्म में है, सो इट इज इन दिस वे। जब सॉलिड फॉर्म में है तो इट इज इन फीसर स्ट्रक्चर फॉर्म। ये फीसर स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। कोई बना लीजिए, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, और कैपिटल डी कैपिटल एल, नो मैटर, हमको केवल साइक्लाइजेशन देखना है। इससे मत कहिए कि सर आप डेक्स्ट्रो बतलाए थे तो क्या डेक्स्ट्रो वाला ही करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एच एंड सी, एच एच एंड ओ एच। सो ये आप देखिए, व्हेन ग्लूकोज डिजोल्व इन एनी लिक्विड टू फॉर्म द सॉल्यूशन, जब ग्लूकोज किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, देन व्हाट इज हैपनिंग, होता क्या है, ध्यान से देखिए। जो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप में जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड ओ, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। one bond is going, when one bond will be broken down, then one valency of carbon and one valency of oxygen becomes free। तो कार्बन और ऑक्सीजन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। नाउ जो हम बात कर रहे थे कि लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन की ही बात क्यों हो रही है, सो जो साइक्लाइजेशन होता है वो इसी लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन से होता है। साइक्लाइजेशन इज हैपन एट द लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, दैट्स वाई, इसलिए मैंने कहा कि बाकी कार्बन पे एच ओ एच की साइड इससे मतलब नहीं है, ठीक है, इस कार्बन पे केवल। नाउ सी दिस ओ एच, जो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन का ओ एच है, कोई और ओ एच नहीं, लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन का ओ एच, दिस विल बी रिमूव आउट फ्रॉम, ये यहाँ से रिमूव होता है। सो वन वैलेंसी ऑफ दिस कार्बन विल बी फ्री। इस फिफ्थ कार्बन की एक वैलेंसी क्या होती है, फ्री हो जाती है लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन की। सो दिस ऑक्सीजन कम्स एंड फॉर्म द बॉन्ड विद, अब ऑक्सीजन की जो एक वैलेंसी फ्री हुई थी, इट इज कंप्लीटेड बाय द बॉन्ड फॉर्मेशन विथ फिफ्थ। अब केवल बची एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा तो वन वैलेंसी ऑफ कार्बन बिकम्स फ्री, वन वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स फ्री। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज कंप्लीटेड बाय द बॉन्ड फॉर्मेशन विथ कार्बन, दैट इज लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। जो OH निकला था, दिस OH विल बी मूव एंड अटैच विथ एल्डिहाइड कार्बन। सो कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई, मतलब केवल यू कैन से रीअरेंजमेंट, केवल रीअरेंजमेंट हो रहा है। फिफ्थ पोजीशन मतलब लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन से OH निकल करके फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे चला था, फंक्शनल ग्रुप कार्बन पे। आई एम नॉट सेइंग एट, यस Sir, please explain once more. हाँ ओके, वेट अ मिनट। आई एम सेइंग कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला ये जो CHO है, इस CHO का बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, व्हाट इज द बॉन्डिंग पैटर्न, C डबल बॉन्ड O, C के साथ डबल बॉन्ड O है एंड C से ही H भी अटैच है। So when it dissolve in water, जैसे या any liquid to form the solution, then what is happen? One bond of double bond between C double O is broken down. एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है। So when one bond will be broken down, तो उस बॉन्ड से अटैच था कार्बन और ऑक्सीजन, दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, वन वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड वन वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। द वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बिकम्स फ्री। अब उनकी वैलेंसी कंप्लीट कैसे होगी, सो फॉर कंप्लीशन द OH फ्रॉम लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, जो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन यहाँ फिफ्थ कार्बन यहाँ पर एक ग्लूकोज के केस में फिफ्थ कार्बन है, दिस लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन से OH रिलीज होता है and this oxygen form bond with this fifth carbon, ये ऑक्सीजन फिफ्थ कार्बन से बॉन्ड बना लेता। सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज नाउ लेफ्ट
एंड वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज कंप्लीटेड, क्योंकि ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई थी तो इसने यहाँ से बॉन्ड बना लिया। ये जो एक बॉन्ड बचा था वो नहीं टूटा, जो पहले एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था उसकी वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट हो गई फिफ्थ कार्बन से, और OH यहाँ से निकल करके चला जाता है कार्बन के पास। सो स्ट्रक्चर बिकम्स, अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, ध्यान से देखिए, H इस पर आकर के क्या अटैच हो जाता है, फिफ्थ कार्बन का OH, फिफ्थ कार्बन का OH यहाँ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अगला क्या है, जो ऑक्सीजन था वो सिंगल बॉन्डेड हो गया है। नेक्स्ट जो जैसे था H एंड OH वो सारे अपने जगह पे वैसे ही रहते हैं। OH एंड H, नेक्स्ट OH एंड H, जो लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर है बस वही, वन थिंग विल बी जस्ट चेंज, अब यहाँ कार्बन OH हट गया है, सो दिस फिफ्थ कार्बन विल बी फॉर्म द बॉन्ड, कार्बन से जो OH हटा है ये बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की भी दो वैलेंसी पूरी हो जाती है, कार्बन से H निकला था, OH निकला था, उसकी वैलेंसी भी पूरी हो जाती है, और जो H अपनी जगह पर है। नेक्स्ट H एंड नेक्स्ट OH, सो C, जो फर्स्ट कार्बन था फंक्शनल ग्रुप कार्बन, that will be now attached through oxygen with lowest asymmetric carbon. First carbon, और here first carbon, not always first carbon, हमेशा फर्स्ट कार्बन नहीं रहेगा, फंक्शनल ग्रुप कार्बन, कंफ्यूज नहीं होना है तो कहिए फंक्शनल ग्रुप कार्बन, और हमेशा फिफ्थ कार्बन भी नहीं रहेगा, लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, द फंक्शनल ग्रुप कार्बन C डबल बॉन्ड O, क्योंकि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो C डबल बॉन्ड O दोनों में रहेगा, दैट डबल बॉन्ड विल बी ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन के समय डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा फंक्शनल ग्रुप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला, सो दैट दे विल कंबाइन विद द लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। यहाँ ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट कार्बन है और एसिमेट्रिक कार्बन फिफ्थ कार्बन है, लोवेस्ट एसिमेट्रिक, सो किसके किसके बीच में होता है, C1 और C5 के बीच में। ये भी आपका क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन विच टू कार्बन आर कंबाइन थ्रू, ठीक है, और बाइंडेड थ्रू ऑक्सीजन एटम, कौन से दो कार्बन ऑक्सीजन एटम के थ्रू बाइंड होते हैं ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन, फर्स्ट कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन इन ग्लूकोज, दिस इज ओनली इन ग्लूकोज, फ्रक्टोज में कार्बन का नंबर कुछ और होगा, एंड अगर यूजुअल पूछा जाए देन यूजुअल यू विल से फंक्शनल ग्रुप कार्बन विथ लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन, usually you will say simply functional group carbon with lowest asymmetric carbon, functional group carbon attach होगा with lowest asymmetric carbon से, ठीक है। here in glucose first carbon fifth carbon, now see how the cycle is formed, अब इसमें साइकिल कैसे बना, so see this is a cyclic pattern, cyclic मतलब क्या होता है, closed structure, and it becomes its side and it becomes means this one becomes its side, so in the cycle जो cyclic structure बना, in that cyclic structure how many atoms will be there in the formation of that cyclic structure, cyclic structure को बनाने के लिए कितने एटम वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन and 1 oxygen, so total 6 atoms are there. So what will be the shape of cyclic structure of glucose? Glucose के cyclic structure का shape क्या होगा? Hexagonal, because 6 atoms are participate in bond formation. Now see the cyclic structure. अब मैं जा रहा हूँ cyclic structure बनाने, पहले बनाएंगे फिर आपको दिखलाएंगे है कि नहीं वैसा। So cyclic structure must be hexagonal. Cyclic structure कैसा होना चाहिए? Hexagonal, क्योंकि 6 atoms are combined to form this.
In this hexagonal structure, how many carbons will be there? 5 कार्बन, 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होगा इन विच 1 2 3 4 5 कार्बन and 1 oxygen will be there, because first and fifth oxygen is combined through first and fifth carbon is combined through oxygen. So 5 कार्बन स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, बट उस साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। इन दिस द ऑक्सीजन, जिस कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है वो एक कार्बन फर्स्ट कार्बन होगा और दूसरा कार्बन फिफ्थ कार्बन होगा। तो नंबरिंग उसी के हिसाब से आप करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ सी, अब इन कार्बन्स पे क्या क्या है, सी फर्स्ट कार्बन पे H एंड OH अटैच है, यू कैन सी OH ऊपर है, H लेफ्ट साइड है। सेकेंड कार्बन पे भी लेफ्ट एंड राइट HOH अटैच है, थर्ड कार्बन पे भी HOH अटैच है, फोर्थ कार्बन पे भी HOH अटैच है, फिफ्थ कार्बन पे केवल H अटैच है एंड सिक्स्थ कार्बन पे, जो सिक्स्थ कार्बन है वो पांचवें कार्बन से अटैच है, साइकिल के बाहर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर है। सो सिक्स्थ कार्बन अभी हमने बनाया नहीं, अभी तो केवल 5 कार्बन बना है, लेकिन ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है। दैट सिक्स्थ कार्बन विल बी आउटसाइड ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये सिक्स्थ कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाहर चला जाएगा क्योंकि ये बाहर हो गया है, ठीक है। नाउ फर्स्ट कार्बन पे यू हैव सीन H एंड OH। फर्स्ट कार्बन पे आपने देखा क्या क्या लगा हुआ था, H एंड OH। सेकेंड कार्बन यू हैव सीन H एंड OH, किसी भी साइड में ऊपर नीचे कहीं पे भी HOH लिख सकते हैं। थर्ड कार्बन H एंड OH, फोर्थ कार्बन H एंड OH, बट फिफ्थ कार्बन पे केवल क्या लगा था, H एंड सिक्स्थ कार्बन इज हैविंग H। सिक्स्थ कार्बन पे 2 H लगा था, 1 H 2 H and OH. So this is the structure of glucose, that is cyclic structure. ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हुआ। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज हेक्सागोनल। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। इन दैट हेक्सागोनल साइकिल 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। उस हेक्सागोनल साइकिल में 5 कार्बन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, जबकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो 6th कार्बन कहाँ होता है, आउटसाइड ऑफ द रिंग, रिंग के बाहर होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इन हेक्सागोनल। हेक्सागोनल होते ही माइंड में आता है 6 एटम्स, मीन 6 पॉइंट्स विल बी देयर, एंड ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम होते हैं। तुरंत बोल दिया जाता है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द हेक्सागोनल रिंग ऑफ ग्लूकोज। क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन, सॉरी हेक्सागोनल रिंग ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के हेक्सागोनल रिंग में कितने कार्बन होते हैं, रिंग की बात कर रहा है। और ग्लूकोज के पास कितने होते हैं, ग्लूकोज के पास 6 होते हैं, लेकिन हेक्सागोनल रिंग में 5 कार्बन होते हैं। तो जो सिक्स्थ पॉइंट होता है वहां पे क्या होता है, दैट इज ऑक्सीजन। विच 2 कार्बन एटम्स आर कंबाइंड थ्रू ऑक्सीजन। कौन से 2 कार्बन एटम ऑक्सीजन से कंबाइन होके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ग्लूकोज की बात क्यों हो रही है, सब जगह नहीं। देन दैट इज C1 एंड C5। C1 और C5 ऑक्सीजन एटम के थ्रू कंबाइन होके साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। रिमेंबर दिस। सो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ the cyclic structure of glucose is called Haworth structure of glucose.
इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हैवर्थ स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि हैवर्थ ने ये एक्सप्लेन किया कि कोलाइडल सॉल्यूशन में और लिक्विड सॉल्यूशन में ग्लूकोज जो होता है वो ओपन चेन के फॉर्म में नहीं होता है, उसका साइक्लाइजेशन हो जाता है एंड इट प्रेजेंट इन साइक्लिक फॉर्म। सो दिस इज कॉल्ड हेवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसको हेवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहते हैं। तो क्वेश्चन जो आता है एग्जामिनेशन पेपर में वो आता है, ड्रॉ द हेवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के हेवर्थ स्ट्रक्चर को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ द हेवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हेवर्थ स्ट्रक्चर का मतलब वो कह रहा है ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। कभी हो सकता है डायरेक्ट कहे कि ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और कभी कहेगा कि ड्रॉ द हेवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो हेवर्थ स्ट्रक्चर मतलब समझ जाइएगा कि विच स्ट्रक्चर द क्वेश्चन इज आस्किंग। क्वेश्चन इज आस्किंग साइक्लिक स्ट्रक्चर। आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बनाना है। हेक्सागोनल रिंग रहेगा, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, एक कार्बन को 1 नंबर, नेक्स्ट कार्बन 2 ऑक्सीजन दैट विल बी 5th नंबर, और 6th कार्बन विल बी आउटसाइड। अब इसको एक और नाम दिया गया है। This cyclic structure of glucose is called Haworth structure, as well as it is having one more name, that is glucose pyranose. Glucose pyranose. Pyranose. So remember this name. Maybe glucose pyranose will be there, or maybe pyranose only will be there. We draw the pyranose structure of glucose. कंफ्यूज करने के लिए पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो आपको लगेगा अरे ये कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है क्या ग्लूकोज का। सो फीसर स्ट्रक्चर एक है, दैट इज ओपन चेन, एंड हैवर्थ स्ट्रक्चर दूसरा है, दैट इज साइक्लिक। एंड हैवर्थ स्ट्रक्चर को ही कहा जाता है ग्लूकोज पायरेनोज। या तो कहेगा ग्लूकोज पायरेनोज या केवल पायरेनोज कहेगा, ग्लूकोज पायरेनोज या केवल पायरेनोज वहां पे रहेगा, ग्लूकोज पायरेनोज या केवल pyranose structure of glucose ऐसे पूछेगा। Now question is there, why this cyclic structure is called glucose pyranose structure or pyranose structure? ठीक है, हैवर्थ स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि साइंटिस्ट ने बताया है, ये तो चलिए साइंटिस्ट के नाम पे हो गया। बट व्हाई इट इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर? इसको पायरेनोज स्ट्रक्चर कहते क्यों हैं? देन रीजन इज हियर कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू वन साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज पायरॉन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता जुलता है, दैट इज पायरॉन। पायरॉन भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। पायरॉन ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और इसके हेक्सागोन में भी 1 ऑक्सीजन होता है और 5 कार्बन होते हैं। सो ड्यू टू दिस सिमिलरिटी ऑफ साइक्लिक रिंग, साइक्लिक रिंग केवल एक जैसा है, बाकी एक जैसा नहीं है कि इसमें भी HOH होता है, ऐसा कुछ नहीं है, या इसमें भी 6 कार्बन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें 5 कार्बन ही होता है, और वो 5 कार्बन रिंग में होता है। तो केवल रिंग ऐसा है कि रिंग हेक्सागोनल है, और उस रिंग में जैसा कि ग्लूकोज में देखा गया है 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन होते हैं, वैसा इसमें भी होता है। एंड इसका नाम देखा गया पायरॉन, सो इसको कह दिया गया पायरेनोज। सो the cyclic structure of glucose is also called pyranose structure of glucose or glucose pyranose, because its structure means its cyclic structure is similar to the, ठीक है, ऑर्गेनिक साइक्लिक कंपाउंड दैट इज पायरॉन, इसीलिए इसको पायरेनोज कहा जाता है। दिस इज अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। नाउ इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर में आता है 2 फॉर्म, कैपिटल डी कैपिटल एल, वैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज हैविंग 2 फॉर्म, दैट इज अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा फॉर्म आता है। रिमेंबर, ओपन चेन स्ट्रक्चर में कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म आता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा आता है। नाउ व्हाट इज अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज? अल्फा बीटा फॉर्म क्या होता है? देन अल्फा एंड बीटा फॉर्म इज डिसाइडेड
on the basis of position of hydroxyl group at the functional group carbon in cyclic स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप कार्बन। तो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप कार्बन कौन सा था? दैट इज फर्स्ट कार्बन, एल्डिहाइड ग्रुप वाला। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी वो कौन सा है? फर्स्ट कार्बन। सो इन ग्लूकोज एट द फर्स्ट कार्बन पे, इन ग्लूकोज भी आपका गलत हो जाएगा। इफ यू विल राइट इन ग्लूकोज दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। आपको लिखना पड़ेगा इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन में अल्फा बीटा नहीं होता है। सो इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एट द फर्स्ट कार्बन पे, इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज डाउनवर्ड, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे के साइड होता है, देन दैट इज कॉल्ड अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसको कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, यानी अगर हम अल्फा और बीटा फॉर्म बनाए, बस यही है, OH इज डाउनवर्ड देन दैट इज अल्फा फॉर्म, OH इज अपवर्ड एट द फर्स्ट कार्बन। ग्लूकोज के केस में एट द फर्स्ट कार्बन। तो अगर हम अल्फा बीटा फॉर्म दोनों बनाते हैं, देन सी, दो ग्लूकोज मैंने बना दिया। ठीक है, अब इस पे कार्बन, ऑक्सीजन और बाकी चीजें लगाते हैं। ये ऑक्सीजन, कार्बन 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 कार्बन, और फिर एक इसके ऊपर सिक्स्थ कार्बन। इस कार्बन पे H अपवर्ड, OH डाउनवर्ड। इसको अपवर्ड डाउनवर्ड कहेंगे, लेफ्ट राइट नहीं कहेंगे। ठीक है, इस कार्बन पे, बाकी कार्बन पे किसी साइड लगा दीजिए, नो मैटर, बाकी कार्बन पे किसी साइड हो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। सो कैपिटल डी कैपिटल एल फॉर्म लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन से पता चलता है। अल्फा बीटा फंक्शनल ग्रुप कार्बन से पता चलता है, HOH। फिफ्थ वाले पे आपको पता है केवल H लगाना है, एंड सिक्स्थ वाले पे H, या आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए CH2OH। इसमें अगर चलते हैं, अब आप केवल ऑक्सीजन चाहे तो मेंशन कर दीजिए, बाकी 5 पॉइंट पता चल रहा है कि कार्बन है, सीधे अटैच कर दीजिए। अब OH ऊपर हो गया, H नीचे हो गया। हियर इस कार्बन पे किसी भी साइड लगा दीजिए, नो मैटर, HOH। बस HOH लगाना है, बहुत सिंपल है। देखने में आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है। हेक्सागोनल रिंग बनाइए, कार्बन मेंशन करिए, नंबर मेंशन करिए कार्बन का, HOH लगा दे सकते हैं। HOH, ये फिफ्थ कार्बन, इसके ऊपर सिक्स्थ कार्बन पे CH2OH हो जाएगा, एंड फिफ्थ कार्बन पे केवल H लगाना है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन है, बस फर्स्ट कार्बन पे देखना है। At the first carbon, OH is downward, it is alpha glucose. At the first carbon, OH is upward, so it is beta glucose. So what is alpha and beta glucose? Then you will say in cyclic structure of glucose, if OH is hydroxyl group is present downward side, then that is alpha glucose, and if hydroxyl group is present upward side at the first carbon, then that is beta glucose. And this alpha beta form of glucose is combinedly called enomer of glucose। एनोमर, देखिए आइसोमर पढ़े, इनैंसियोमर पढ़े, अब एनोमर। अगर आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनोमर, देन कहेंगे अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और मोनोसैकेराइड इज कंबाइनली कॉल्ड एनोमर ऑफ ग्लूकोज। अल्फा और बीटा फॉर्म को मिला के एनोमर कहते हैं। ये हो गया एनोमर एंड अल्फा बीटा
आपका कैसे फाइंड होगा, ये हो गया। सो इतनी चीजें थी हमारी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। हम कहाँ तक पहुंचे थे एक बार फिर से देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ मतलब सी, हम ये देख रहे थे कैपिटल डी कैपिटल एल नोटेशन। ठीक है, देखिए ये अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, देखिए दो क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ये देखिए लिखा हुआ है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो ये बता रहा है कि डी और एल ओपन चेन में मिलेगा और अल्फा बीटा साइक्लिक में मिलेगा। ठीक है, अल्फा बीटा में ये डिफरेंस बता रहा है। देखिए ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का सॉरी ये फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है क्योंकि कीटोन इसमें दिया है, और ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। यहाँ फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया था इसको छोड़ दीजिए। ये ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर देखिए साइक्लाइजेशन कैसे हो रहा है ये दिखा रहा है कि जो लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन यानी फिफ्थ कार्बन है उसका OH निकल करके इस कार्बन पे आ रहा है, एरो आपको दिखा रहा है, और ठीक है यहाँ से डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो रहा है। सो फाइनल साइक्लिक स्ट्रक्चर ये बन रहा है। अभी फ्रक्टोज का हमने डिस्कस नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए। ये साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन को देखिए ये पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैसे होता है। इसको यहाँ पे भी जो मैंने बताया था वो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ग्लूकोज है, ओपन चेन स्ट्रक्चर, इसका फिफ्थ कार्बन से OH निकल के फर्स्ट कार्बन पे जाएगा और ऑक्सीजन कंबाइन होगा फिफ्थ कार्बन से। ठीक है, अब इससे बनेगा दो अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा बीटा ये आपको यहाँ पे अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर में आगे बताएगा आपको। ये अभी बात नहीं की, म्यूटा रोटेशन की बात नहीं की है, ये सभी बात नहीं हुआ है। अभी केवल आपको अल्फा बीटा तक बात हुआ है, अल्फा बीटा। सो अल्फा में देखिए फर्स्ट कार्बन पे OH, इसमें आपको लेफ्ट और राइट पता चल रहा है बट लेफ्ट और राइट हम नहीं कहते हैं, हम अप एंड डाउन कहते हैं। ठीक है, अगर ऊपर है तो बीटा, जब इसको साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप ऐसे रोटेट करेंगे, अपने मोबाइल को ऐसे रोटेट करिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा, तब ये OH ऊपर की तरफ जाएगा तो बीटा हो जाएगा, OH नीचे की तरफ आएगा तब ये अल्फा हो जाएगा, जो मैंने आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके दिखलाया है। देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है, OH डाउनवर्ड है अल्फा फॉर्म, ठीक है, OH अपवर्ड है बीटा फॉर्म। इट इज कॉल्ड हैवर्थ स्ट्रक्चर। और देखिए लिखा हुआ है पायरेनोज, व्हाई, बिकॉज इट्स सिमिलर टू पायरॉन। बाकी चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल सिमिलरिटी क्या है कि हेक्सागोनल रिंग है, रिंग में एक ऑक्सीजन है और 5 कार्बन, बस यही सिमिलरिटी है और कोई सिमिलरिटी नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन सब सेम है ऐसा कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं है। सो ये हो गया पायरेनोज। सो अल्फा बीटा फॉर्म देखिए ये लिखा है एनोमर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन को ही एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। फर्स्ट कार्बन इज एनोमेरिक कार्बन। अगर ये पूछेगा विच का व्हाट इज एनोमेरिक कार्बन तो आप कहेंगे द फर्स्ट कार्बन ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन बिकॉज दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द अल्फा एंड बीटा फॉर्म। एंड पायरॉन, देखिए ये कह रहा है कि पायरॉन भी एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हेक्सागोनल रिंग होता है, रिंग में 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन होते हैं जैसा कि ग्लूकोज में है। इसलिए ग्लूकोज को भी हम क्या कहते हैं, ग्लूकोपायरेनोज कहते हैं, केवल पायरेनोज नहीं कहते हैं, ग्लूकोपायरेनोज कहते हैं। सो म्यूटा रोटेशन, ये 3 पेज छोड़ करके म्यूटा रोटेशन, अभी ये बात नहीं हुई है, इसको छोड़ के हमारा ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हमको कल फ्रक्टोज का देखना है, ग्लूकोज हमारा आज कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया आपका 37, ये पेज नंबर 37 तक आपका कंप्लीट हो गया, ग्लूकोज कंप्लीट हो गया। ग्लूकोज में यही पढ़ना था, प्रिपरेशन, केमिकल Sir, प्रॉपर्टी, PDF you have not sent. यस हेलो, Sir, PDF of this chapter. PDF आई एम सेंडिंग, सॉरी फॉर दैट, मैं अभी तुरंत सेंड कर